Hello. Hello, welcome dear students and learners. I am Priyanshu welcoming you to Early Bird IAS. We are here to we are here to learn chemistry, and which is discussed that what is chemistry. Chemistry is the uh, study of study of atom, study of how atom change, study of how molecule form, and study of chemical reactions, study of heat, study of energy transmission. So this is chemistry. This is called chemistry. This is the chemistry study of nuclear reactions, nuclear compositions, nuclear energy. Okay, and study of chemistry is the carbonic and non-carbonic and ionic and non-ionic compounds is called the chemistry. So now in today's class we will just discuss about what is acid and what is base, that we just little bit discussed in the previous session, that what is base and what is acid. Acid is the substance, or acid is the substance that donate hydrogen ion and base are the substance that they just receive OH या फिर हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयंस क्या है कि हाइड्रोजन आयन अगर कोई रिलीज कर रहा है, इट मीन्स दिस इज एसिड. एंड इफ अ सब्सटेंस इज accepting the OH or the hydrogen ion, it means this substance is base. Okay, so explore the fundamental concept. फंडामेंटल कंसेप्ट यही है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस को क्या करे, डोनेट कर दे, क्या कर दे, एग्जिट के लिए बोल दे, डोनेट कर दे, क्या करे, डोनेट कर दे, और जो क्या करे, एक्सेप्ट करे, जो हाइड्रोजन आयंस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो क्या है हमारे पास बेस है, और जो क्या करे हाइड्रोजन आयन को क्या करे जो है रिलीज करे, वो हमारे पास एसिड है. ठीक है. देन व्हाट, understand the pH scale. What is pH? pH is a scale that have the marking of 0, 7 and 14. This is the minimum marking, this is the lowest marking, and this is the highest marking, and this is the neutral marking. In between 0 to 3.5 highly acidic substance are highly acidic, and in between 3.5 to 7 it means substance is general or normal acidic. When we just go and when the number increase, it means acidity decreases. The number increasing in the pH scale, it means the acidity of a particular substance or the acidic nature of a substance is decreasing. And after 7 the number increasing, it means the basic nature or the nature of a compound, nature of compound is base. The number increases after 7, it means the basicity of a substance is increasing. 14 is the highly basic. 14 is the number that indicate the the 14 is the number which indicates us that particular substance is highly basic. That particular substance is highly basic. Okay, तो ये कौन बताएगा हमें, ये हमें बताएगी pH scale. And just about this is the just intro about the pH scale. We will just take a holistic overview. We'll just make a holistic overview in this class. Okay, on pH scale. So, what are the acid and base? What is acid and what is base?
that we just discuss. Acids are sure in taste. ये क्या होता है भाई, टेस्ट के अंदर जो हमारे पास क्या थोड़े से शोर होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं. कैसे होते हैं, खट्टे खट्टे. जैसे ये देखो ऑरेंज, जस्ट लाइक ऑरेंज इज टू शोर, है ना, खट्टा होता है. जस्ट लाइक लेमन, है ना, जस्ट लाइक रॉ पाइनएप्पल, जस्ट लाइक कच्चा आम, जस्ट लाइक कच्चा मैंगो. तो ये सब क्या है, एसिड है. क्या है, एसिड है. अगर when I just talk about base means base have bitter taste. कैसा, कड़वा टेस्ट, लाइक करेला, है ना, लाइक करेला. अब देखो, अगर हम बात करें कि बिटर टेस्ट है, मीन्स सॉल्ट. साल्ट देन रिएक्ट विथ एसिड. और क्या करता है, ये एसिड्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है. और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ. तो बेस इन एसिड्स bases and acids are react with each other and make new compounds, form new compounds. Okay, then what we just discussed in this chapter, this is called pH scale. We measure acidity and basicity of a substance of any सब्सटेंस. तो क्या है, हम क्या करेंगे, सब्सटेंस की बेसिसिटी और हमारे पास जो एसिडिटी क्या है मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हम पीएच स्केल का यूज करेंगे. क्या करेंगे, पीएच स्केल का यूज करेंगे. देन व्हाट द केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड डोनेट्स प्रोटोन. क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं वो H+ मीन्स प्रोटोन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. क्या करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं. एंड बेस एक्सेप्ट दी प्रोटोन दैट डोनेटेड बाय एसिड. एसिड जो है प्रोटोन को जो रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कौन करता है भाई, बेस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. क्या है, एसिड्स की जो क्या है, एसिड्स का टेंडेंसी कैसी है, एसिड की टेंडेंसी कैसी है कि कुछ ना कुछ डोनेट करना. कुछ ना कुछ मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन को क्या करना, डोनेट करने का नेचर किसका है, तो एसिड का है. और एक्सेप्ट करने का नेचर किसका है, तो बेस का. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट आओ, पीएच स्केल की अगर हम बात करें, मेजर एसिडिटी. पीएच स्केल क्या करती है भाई, मेजर क्या करती है, एसिडिटी मेजर करती है. एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर देना, जस्ट जूम इट. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट आई पीएच स्केल क्या करती है, पीएच स्केल जो है हमारे पास क्या करती है, पीएच स्केल की बात करें तो मेजर्स पीएच स्केल मेजर्स एसिडिटी एंड alkalinity. Alkalinity means basic nature of base. It's called alkalinity. What is this? Alkalinity is the nature of a base. Like nature of acid is acidity. Basicity is not the proper word, but the alkalinity is the proper word. Okay. चलो आ जाओ. रेंज फ्रॉम 0 to 14. इसकी रेंज क्या होती है भाई, 0 to 14 क्या है इसकी रेंज, मीन्स पीएच स्केल इज
क्वाइट लाइक आर स्टिक स्केल 0 to 15। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक स्केल आती है, स्टिक आती है, वो कितनी होती है 0 to 15 होती है। बट इन pH स्केल it is its range from 0 to 14, its range from 0 to 14, and 7 is neutral. 7 is neutral. All these points that you should remember is it measure acidity and alkalinity, and then the range from 0 to 14, and 7 is the natural. 7 is the neutral, not the natural but the neutral. अब आओ, what is 0? So what is the meaning of 0 in pH scale? What is meaning of 0 in a pH scale? So I will say to you that the 0 means highly acidic or most acidic. क्या है? Highly acidic or most acidic is number 0. And we just say what is 7? It means 7 is neutral. 7 is neutral, means water. Nor acidic, neither acidic nor basic or nor alkalinic. ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये जो है हम कहेंगे सर वाटर कैसा है? वाटर क्या है? न्यूट्रल है। ओके, देन नंबर 14 इज द मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक मीन्स हम कहेंगे सर जो इसका टेस्ट बहुत ही बेटर होता है, बहुत वेरी मच बेटर, टू मच बेटर क्या है? हम कहेंगे सर 14 नंबर क्या है? टू मच बेटर टेस्ट। ओके, दिस इज द स्केल, हाउ द स्केल लुक्स लाइक. दिस इज 0, highly acidic, and at that point when we just say this is called 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, ऐसे करते यहाँ पे आएगा 7. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी इस तरफ लिखते हैं ना ताकि क्लियरिटी आए अपने. एक मिनट, this is called 1, then 2, this is 7, this is 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, this is 8, then this one is 9, okay, 10, 11, 12, 13, and then last one is 14. The last one is 14. 14 means highly basic. अब ये ना ये दोनों तरफ से, ठीक है. अब होता वैसे जनरली देखो, अब हम बनाते हैं, ये तो क्या जनरेटेड पिक्चर है, तो यहाँ ना इतनी शायद आपको अंडरस्टैंडिंग ना आए, बट अगर अब मैं खुद बनाऊं तो क्या होगी. हाँ, this is how a scale looks like. ठीक है, this is called 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, and then this is 7, means neutral. Then 8. अब यहाँ तो क्या हुआ, एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हुई है. क्या हुआ, एसिडिटी डिक्रीज हुई. अब एसिड, अब यहाँ से क्या होगा, बेस क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे हम कहेंगे सर 8, 9, 10, 11, 12, 13, and last one is 14. तो हाउ द स्केल लुक्स लाइक, कुछ स्केल जो हमारे पास ऐसे में
जो है लुक्स लाइक होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 2.4 हो गया। ये अब आप लोग छोटा सा समझदार हो, है ना, इतने समझदार हो आप लोग। तो हम बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसे हाँ, तो ये क्या है हमारे पास एक जो स्केल है। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, कुछ डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल है, डेली लाइफ कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जो क्या है वो हम चेक करेंगे कि ये क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब आपको क्लियरिटी हुई कि देखो, अगर मैं कहता हूं 3.02 3.5, तो मुझे सर मोस्ट एसिडिक क्या है, most acidic, and when I just say 3.5 to 7, when we just go toward 7 it means acidity decreases, ठीक है, एसिडिटी डिक्रीज होगी, तो हम कहेंगे सर नॉर्मल एसिडिक, नॉर्मल एसिडिक। एंड देन जो 7.12 हाँ व्हेन वी जस्ट से 10.5 नॉर्मल बेसिक। नॉर्मल हम क्या कहेंगे, बेसिक, या एल्कलाइन लिखते हैं ना, बेसिक मुझे मस्त नहीं लग रहा, हम लिखेंगे एल्कलाइन। एल्कलाइन एंड 10.6 to 40 मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। अब नाउ आई विल जस्ट टेल यू सम डेली लाइफ एग्जाम्पल, daily life example of some things that we are using in daily life, and just I will just tell you the pH number of that particular substance, and you just have, and you just create a table. You have to create a table and note down the pH level, and you just write is this material substance is acidic, neutral or base. ओके, तो ये काम क्या है अब हमें करना है, तो जस्ट रेडी फॉर द टेबल, ओके। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीडे बेसिक्स, एसिड्स दैट यू यूज इन, यहाँ लिखे हैं बट यहाँ पर एग्जाम्पल काफ़ी कम है। सो first of all we just create a new slides, we have to just take a new slide, okay। So first of all, what, start with water, pH level, pH नंबर, एक ऐसी टेबल बनेगी pH नंबर, एंड देन हम क्या करेंगे, pH नंबर। अब हम क्या करना है, एसिडिक है तो हमें स्टार बनाना है, एसिड है मीन्स हमें इस तरह का कुछ स्टार बनाना है, और बेस है अगर वो बेस है तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्लियर है। अब देखो वाटर का जो पीएच नंबर है वो कितना है, 7 वर्सेस न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल, ये कैसा है हमारे पास जो है न्यूट्रल है। एक सेकंड, आपको न्यूट्रल का भी एक बता देंगे, न्यूट्रल भी अब जो है काफ़ी हम लिखने वाले, न्यूट्रल तो नहीं लिखेंगे बट क्वाइट न्यूट्रल होगा ना, तो इसके साथ हम एक ना तो स्टार करते हैं ना, इसको ऐसे टिक कर लेते हैं।
ठीक है. एंड देन नेक्स्ट वन इज vinegar. What is the next one is vinegar that we are just used to make, that we are just using to make something delicious food. vinegar की जो है जो pH नंबर है वो होगी 2. just make what is it acidic or basic. ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. देन अब क्या है, अगर हम बात करें विनेगर के बाद हो जाएगा एप्पल की है 0.3. एप्पल हाँ, तो हम कहा है एप्पल की अगर हम बात करें तो है 3. देन मिल्क इज अबाउट 6. मिल्क अबाउट 6. एंड देन banana is about 4. and what we can say, tomato, what is tomato is about 3. Tomato is about 3. and what we can write after tomato, chocolate है ना, chocolates that you are just eating है ना. क्या लिखे, अब हम देखो चॉकलेट वैसे होती कैसी है, मीठी होती, स्वीट होती, बट उसका नेचर जो है, जो चॉकलेट है ये दिस इज एल. ठीक है, चॉकलेट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगी. चॉकलेट वैसी कैसे होती, अरे यार, कीप चॉकलेट का जो नेचर है, वैसे तो होता चॉकलेट का नेचर स्वीट है, बट इसका जो है पीएच लेवल अगर बात करूं मैं तो है अराउंड 5. और राइस देख लेते हैं, राइस 0.6 होती है. एंड वाटर हमारे पास 0.7 है. देन और क्या देख सकते हैं, बेकिंग सोडा हो जाएगी हमारे पास. बेकिंग सोडाज पीएच इज अबाउट 9. हाँ, अबाउट 9. एंड देन एग जो है, एग की जो हमारे पास जो है होगी 8. एंड देन लाइम वाटर की अगर मैं बात करूं, इट इज अबाउट 12. तो अब बताओ मुझे कि कौन यहाँ पर बेसिक है और कौन यहाँ पर क्या है, एसिडिक है. तो देखो, वाटर तो क्या है, न्यूट्रल है. विनेगर क्या है, एसिडिक, स्टार लगाऊं. एप्पल क्या है, एसिडिक, बट नॉर्मल एसिडिक है, तो यहाँ डबल स्टार कर लेते हैं, यहाँ सिंगल स्टार करेंगे. मिल्क क्या है, एकदम नॉर्मल, सिंगल स्टार करेंगे. बनाना क्या है, नॉर्मल है. टोमेटो क्या है, जो डबल स्टार कर लेते हैं भाई, हाईली है. ठीक है, चॉकलेट क्या है, नॉर्मल है. राइस क्या है, नॉर्मल है. ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, ट्रायंगल बनाओ भाई, ये क्या हमारे पास एल्कलिक है, फिर बेसिक है. एग क्या है भाई, बेसिक है, ट्रायंगल बनाओ. देन लाइम वाटर क्या है, बेसिक है. NaCl हमारे पास क्या है, 14. सॉल्ट हमारे पास अराउंड 10. तो ये भी हमारे पास ये हो गए क्या है, बेसिक. क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास बेसिक बेस.
ओके, बेसिक पीएच। ओके, चलो जस्ट मूव फर्दर। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें तो क्या है, सोर टेस्ट, रिएक्ट विथ मेटल, ये क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, डोनेट हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, जब भी अगर हम इन्हें किसी when we add some some acidic nature substance to any reaction or on any metal, then the hydrogen आयंस क्या करेंगे, या फिर जो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। देन बेसिक की अगर बात करूं, बीटर टेस्ट, स्लिपरी फील, क्या होता है, ये स्लिपरी फील होते हैं, और एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, ये तो क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास डोनेट करते हैं, एसिड क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, और क्या है, बेस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किसको, हाइड्रोजन आयन को, इन एनी सॉल्यूशन। ओके, चलो देन व्हाट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एवरीडे यूज की बात करें कि एसिड्स आर फाउंड इन द मेनी हाउस होल्ड आइटम्स लाइक लेमन जूस, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, ठीक है। बेस्ड आर ऑल्सो कॉमन लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड सोप, साल्ट, ओके। देन व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करूं तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटोन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, प्रोटोन जो है ट्रांसफर होता है। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन कैसा होता है, पॉजिटिव, कैसा होता है, प्रोटोन हमारा पॉजिटिव होता है। तो एसिड्स डोनेट H प्लस आयन, क्या करते हैं, H प्लस आयन को क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। बेस क्या करता है, एक्सेप्टेंस है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है चीजों को, तो ये किसको करेगा, एक्सेप्ट किसको करेगा, H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बेस एक्सेप्ट H प्लस आयन, H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। देन the formation of salt, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई भी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। जब एसिड और बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, वाटर अलग और सॉल्ट जो है वो अलग हो जाएगा। सॉल्ट मींस NaCl, ठीक है, ये हो जाएगा, और वाटर हो जाएगा हमारे पास H2O, ठीक है। चलो केमिकल चेंज की बात करें कि रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसके अंदर, न्यू प्रोडक्ट के रूप में, एज अ न्यू प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। वाइड एप्लीकेशन की बात करूं, एसेंशियल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन की जो बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर कहाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इनका यूज होता है। तो वापस एक जो है इस स्लाइड का रिविजन देखो। प्रोटोन ट्रांसफर कौन करेंगे, तो एसिड जो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स मींस H प्लस आयन को रिलीज करेंगे। बेस क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, बेस क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस दिखाएंगे। जैसे H प्लस आयन को जो है क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे। अब क्या होगा, जब न्यूट्रलाइजेशन की बारी आएगी, जब भी रिएक्शन को न्यूट्रल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, या तो जो है सॉल्ट और वाटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ क्या होगा, जब भी जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करने की बारी आएगी तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। देन व्हाट, द केमिकल चेंजेस, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स है मीन्स अगर हम बात करें जिनके बीच रिएक्शन करवाई जा रही है, A प्लस बी बोथ आर रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करेंगे, दैट विल रिएक्ट आफ्टर सम टाइम, तो दीज आर दी रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, तो ये न्यू प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे। जैसे A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। देन वाइड एप्लीकेशन की बात करूं, एसेंशियल इन द वेरियस इंडस्ट्री लाइक फूड इंडस्ट्री के अंदर कौन, एसिड काम आएगा टू प्रिजर्व, एंड डिटर्जेंट
डिटर्जेंट के अंदर कौन काम आएगा भाई, जो हमारे पास बेस, सोप, एक सेकेंड, एक मिनट, अरे यहां लिखते हैं, एक मिनट, डिटर्जेंट हो जाएगा सोप, बेस, क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट और बेस। क्लियर? चलो, अब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन? द केमिकल बैलेंस, केमिकल्स को क्या करना, बैलेंस करना, इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शंस। लाइक केमिकल बैलेंस, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, क्या है, टू फॉर्म, जब भी आपको ए, अगर मैं बात करूं, ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक, जब भी ये रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा यहां पर, एक तो मिलेगा सॉल्ट, एक मिलेगा वाटर। इट मींस ये अगर एक दूसरे को केमिकल रिएक्शन या फिर तो केमिकल बैलेंसिंग चल रही है। देन pH चेंज, द रिजल्ट्स इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन विद pH क्लोज टू 7। when we say a acid A plus base B react and the product AB is pH is near to, close to 7 means neutral, तो रिजल्ट जो आएगा जब भी हम एक बेस और एक एसिड को क्या है रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें वहां पर जो है रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूट्रल रिजल्टेंट मिलने वाला। ठीक है, देन व्हाट द एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, तो यूज इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। तो मेडिसिन से उनको क्रिएट करने के अंदर या मेडिसिन का फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, काम में लेना पड़ता है, हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शंस का हमें काम में लेना पड़ता है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एसेंशियल इन वेरियस फील्ड्स, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एसेंशियल फॉर वेरियस फील्ड लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, ये भी आपको क्लियर होगा कि जब भी हम एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक केमिकल जो है हमारे पास हम कहेंगे सर एक केमिकल बैलेंसिंग रिएक्शन होगी, और ये केमिकल बैलेंसिंग रिएक्शन जब होगी तो हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें व्हाट विल गेट फ्रॉम दिस केमिकल बैलेंसिंग रिएक्शन, वी जस्ट गेट वाटर एंड सॉल्ट एंड द pH चेंज। The pH change की अगर हम बात करें, when a substance called A is acidic, when a substance called B is basic, when we just react them, the pH of result will be close to 7, ओके, इट मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा ये। और एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारे पास मेडिसिन और एग्रीकल्चर साइंस के अंदर बफर एंड दियर रोल रेसिस्ट pH चेंज, क्या करेगा भाई, रेसिस्ट करेगा किस के अंदर, pH चेंज के अंदर, मेंटेन दी जो है अपने पास मेंटेन दी स्टेबिलिटी विद अ स्पेसिफिक रेंज। अब क्या होगा यहाँ पर जो pH चेंज का यह है रेसिस्ट करते हैं कौन, फिर चाहे वो एसिडिक नेचर का कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई बेसिक नेचर का कोई प्रोडक्ट हो, मींस एल्कलाइन जो प्रोडक्ट है वो भी क्या करेगा, चेंज जो रिएक्ट करेगा, रेसिस्ट करेगा किस चीज को, pH चेंज को। मींस यहाँ भी क्या इनर्शिया काम आ रही है, यहाँ भी क्या है इनर्शिया काम आ रही है। देन बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंटेन ब्लड pH फॉर वाइटल फंक्शन, क्या है, जो बायोकेमिकल्स की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, बायोकेमिकल्स के साथ हम जो बात करें कि ब्लड का भी क्या है pH लेवल है, क्या है, ब्लड का भी अपना pH लेवल है, और इसे मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जो है मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह का यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करती है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेंटेन द ब्लड pH फॉर वाइटल फंक्शन।
ओके। चलो अब जो चेंज कर रहा है रेसिस्ट का भाई जो है हमारे पास जो एसिडिक क्या है चेंज करेगा किसका भाई जो बेसिक होने पर, और बेस जो है वो चेंज रेसिस्ट करेगा किसका जो है एसिडिक होने पर। फिर ब्लड पीएच की अगर हम बात करें तो ब्लड पीएच इज ऑल अबाउट यहाँ नहीं लिखते ना 7.35, ओके 7.35। हाँ, एसिड बेस जो हमारे पास जो है टिट्रेशन, एसिड बेस टिट्रेशन की बात करें, टिट्रेशन बेसिक की बात करें, डिटरमाइन अननोन जो है कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास जो है जो टिट्रेशन की अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा क्या अननोन कॉन्सेंट्रेशन की भाई इसकी क्या है कंसंट्रेशन क्या है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये हाईली बेसिक है या फिर ये जो बहुत ही हाईली एसिडिक है, इससे कैसे पता चलेगा हमें जब एसिड बेस टिट्रेशन करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की अगर हम बात करें कि जब भी व्हेन इन अ रिएक्शन मोल ऑफ amount of acid is 10 ml and the value is about 5, value is about 3.5, the pH value of a base is about 3.5, and same in the other hand the base of 10 ml and the value of base is about 10.5 pH। तो इससे क्या होगा, इससे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे आएंगे। कैसे, ये इसे रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, फिर अगर बात करें इंडिकेटर यूजर्स की बात करें कि सिग्नल, एंड पॉइंट एंड कलर चेंज। When acid and base react each other or reacts, color of substance change and the endpoint, the signal of the endpoint will change. Okay, so that's how we can say the acid base titration, how the application की बात करें कि quality control की अगर हम बात करें, quality, when we just want to check the quality, we just want to check the quality of acid and the base, we just use the method called titration. Okay, and अगर बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी किसका यूज होता है भाई, एसिड बेस टिट्रेशन का यूज होता है। देन द एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर हम बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीनिंग की बात करूं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग में एसिड और बेस का यूज होता है, एसिड और बेस का यूज होता है। देन एनवायरमेंटल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो, एंड सॉइल के साथ अगर कोई हमें रेमेडिएशन करना है, अगर किसी फार्म हाउस के सॉइल के साथ हमें कोई रेमेडी करनी है तो हम क्या कहेंगे, हम वहाँ पर जो है सॉलिड जो है एनवायरमेंटल सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस के कुछ जो है रिएक्शन करवाएंगे, कुछ जो है वहाँ पर नए नए कंपाउंड्स क्रिएट करेंगे या फिर नए नए कंपाउंड्स को जो है मिक्स करेंगे। तो एक तो वाटर ट्रीटमेंट होगा और एक हम क्या करेंगे, वाटर की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर हमारा वाटर मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, एल्कलाइन मीन्स 12 है, तो हम इसकी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और अगर हमारा वाटर क्या है 3.5 पे है, एसिडिक है, तो हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा, इससे क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा। क्लियर। अब देखो फूड एंड बेवरेजेस की अगर बात करूं, प्रिवेंशन एंड द फ्लेवरिंग एंड द प्रोसेसिंग, विच यू जस्ट नो अबाउट द प्रिवेंशन जो खट्टी चीज़ें होती है ना, जो है हमारे पास एसिडिक नेचर जिसका होता है, एसिडिक नेचर प्रिवेंट्स फूड फॉर लॉन्ग टाइम। एसिडिक नेचर जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो है हेल्प करता है। और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए कौन, तो बेस काम करता है। फ्लेवर इन्हांस करने के लिए तो सॉल्ट, कितना मस्त चीज़ है,
सॉल्ट जो है क्या है, फ्लेवर इन्हांसिंग का काम करता है, और कुछ ये दोनों क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। फिर एवरीडे यूज़ की बात करूँ तो हाउस होल्ड क्लिनजर्स, जो आपके हैंड वॉश हैं वो क्या है, हैंड वॉश हो गए, बाथ सोप हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके बेस हैं। और अगर बात करूँ मैं जो है बैटरीज के अंदर भी है लिथियम आयंस वगैरह, ये भी किसकी बनी है, एसिडिक होती है। और हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी क्या है, बहुत से एसिड और बेस का यूज़ किया जाता है। जैसे सॉल्ट का यूज़ हम जो है डेली हाउस होल्ड के अंदर करते हैं, हमारे पास हम लेमन का यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़ करते हैं, हम विनेगर का यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल आर दी डेली यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस। देन जस्ट की टेकअवेज की अगर हम बात करें, पीएच स्केल क्या करती है, मेजर करती है एसिडिटी एंड जो है एल्कलिनिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। 0 स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14, 7 is neutral, 7 is neutral. When we just go 0 to 7, acidity decreases, and when we just go 7 to 14, alkalinity increases, ठीक है। चलो फिर अगर देखिए रिएक्शन की बात करूं कि एसिड बेस रिएक्शंस आर वाइटल, और हमें क्या मिलेगा यहां से, हमें वाटर और सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, कब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। देन बफर की अगर हम बात करें कि मेंटेन स्टेबल पीएच इन सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर पीएच को मेंटेन करना है तो एसिड और बेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीएच लेवल। ओके, सो अब जो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिडिक एंड एल्कलाइंस की आ गई है, आई होप, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट क्या है तो आप कहोगे, जल्दी से कहोगे, क्या कहोगे, सॉल्ट इज अ बेसिक कंपाउंड, एल्कलाइन कंपाउंड, एंड लेमन इज अ एसिडिक कंपाउंड और एसिडिक नेचर थिंग। क्लियर? ओके, सो आई होप आपने जो लेक्चर है ये एंजॉय किया होगा। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कुछ न कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो जस्ट गो एंड spread our knowledge of this class, knowledge of this session to your friends, to your family, okay, and let's have some fun, okay. बाकी कुछ नहीं, stay smiled, stay happy, stay motivated and stay knowledgeful and just enjoy life, okay. Stay smile, never demotivate, है ना, never डीमोटिवेट, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। एक तो फिर आपको कभी जो है सैडनेस नहीं, आपके चेहरे पे ऑलवेज एक स्माइल होनी चाहिए वाइल यू आर स्टडी। स्टडी इज नॉट दी बर्डन, स्टडी कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। स्टडी इज दी वी आर जस्ट मेकिंग अ फ्यूचर, वी आर जस्ट कर्विंग आर फ्यूचर, ओके। अगर आप स्टडी करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे, देन यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर थिंग्स, you will be able to spread your knowledge to everyone, to others, okay. So stay smiled, take care, bye bye, okay, chalo.